یہ قدیم زمانے کی بات ہے جب چیزیلا نامی علاقے پر ایک اچھا بادشاہ اور ملکہ حکومت کیا کرتے تھے۔ یہ دونوں بہت اچھی، نیک، مگر اولاد جیسی خوشی سے محروم تھے۔ بہت جتن کرنے کے بعد آخر کار ایک دن ایسا ہوا کہ ملکہ کی زندگی میں اس بہار کی آمد نظر انہیں لگی۔ اب جب یہ ملکہ ماں بننے والی تھی تو وہ بہت سخت بیمار پڑ گئی اور اس کی جان پر بن گئی۔ بہت لوگوں کو دکھایا، بہت علاج کروایا، مگر ملکہ کی بیماری کی وجہ کوئی جان ہی نہیں پا رہا تھا۔ کافی صلاح اور مشورہ کرنے کے بعد یہ بات طے پائی کہ دور جنگل میں جو ایک جادوئی باغ ہے، وہاں ایک خوبصورت سنہرا پودا ہے جس کا عرق نکال کر ملکہ کو پلایا جائے تو ملکہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ جیسے ہی ملکہ نے اس گہرے سنہرے اور خوبصورت پھول کا عرق پیا، ملکہ تندرست ہو گئی اور اس کے گھر ایک سنہرے بالوں والی بچی پیدا ہوئی جو کہ بہت ہی خوبصورت تھی اور جس کے بال جادو کے تھے، لیکن یہ بات ابھی ملکہ اور بادشاہ نہیں جانتے تھے۔ وہ اپنی بے اولادی کے بعد اس بچی کو پا کر بہت خوش تھے اور اپنی زندگی کو مکمل دیکھ رہے تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ایک سیاہ رات اور ایک بد نظر ان کا راستہ دیکھے بیٹھی ہے۔ دراصل وہ جادوی باغ گاجا نامی جادوگرنی کا تھا۔ گاجا ایک بہت ہی خطرناک جادوگرنی تھی۔ وہ دور جنگل میں ایک بہت اونچی پہاڑی پر رہا کرتی تھی جو ایک ستون نما بنی ہوئی تھی۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب بادشاہ کے سپاہی پھول کو لے جاتے ہیں تو گاجا انہیں دیکھ لیتی ہے۔ بچی کی پیدائش کے بعد گاجا بادشاہ کے گھر کا پیچھا نہیں چھوڑتی اور اس کا چپکے چپکے تعقب کرتی رہتی ہے۔ جیسے ہی وہ بچی اس دنیا میں ہوتی ہے، سب راج میں بہت خوشیاں پھیل جاتی ہیں۔ بادشاہ اپنی بیٹی کا نام رپنزل رکھتا ہے، ملکہ بھی بہت خوش ہوتی ہے۔ ایک رات جب ملکہ اور بادشاہ سو رہے ہیں تھے تو گاجا چپکے سے آتی ہے اور رپنزل کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ وہ جنگل کے گھنے کالے رستوں سے چھپکے چھپکے چوروں کی طرح چلتے ہوئے وہ رپنزل کو لے جا کر ایک بہت اونچے مینار میں رکھ لیتی ہے۔ جب بادشاہ اور ملکہ کو اس چیز کی خبر ہوتی ہے تو وہ بہت روتے ہیں، سر پکڑتے ہیں اور بہت تلاش کرتے ہیں۔ سارا قصبہ اور ساری سلطنت چھان مارتے ہیں، مگر انہیں کہیں پر بھی رپنزل کا کوئی پتہ نہیں ملتا۔ گاجا رپنزل کو ایک بہت اونچے مینار میں لے جا کر رکھ لیتی ہیں۔ یہ مینار گھنے جنگل کے بیچوں بیچ بنا ہوتا ہے، ایک گپت راز کی طرح جس کا کسی کو آج تک پتہ نہیں چلا۔ یہ مینار بہت اونچا، لمبا اور گول تندور کی طرح بنا ہوا تھا۔ جلدی کہ کوئی وہاں پہنچ نہ سکتا تھا۔ اس کے باہر قدیم ہونے کی وجہ سے گھاس کی بیلیں لپٹے ہوئے، پتھروں سے ڈھکا ہوا اور جنگل کے بیچ وہ بیچ کے جس پر روشنی پڑتی رہتی۔ اس مینار میں ایک خوبصورت لکڑی کی بس کھڑکی ہی تھی جس کے ذریعے باہر آیا جا سکتا تھا، اور باقی سارے راستے گاجا نے سوچ سمجھ کر بند کر لیے تھے کہ کوئی آ نہ سکے۔ کے ارد گرد خوبصورت گنا جنگل ابشار بھی تھی۔ گاجا رپنزل کو جو چوڑا کر لے جاتی ہے، اس کے پیچھے اس پھول کا چوری کرنے کا بدلہ تو ہوتا ہے جس سے وہ طاقتیں لیا کرتی تھی، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کو بادشاہ سے حسد تھی۔ وہ اس سلطنت کو بھی ہتھیانا چاہتی تھی اور اس کے الٹے سیدھے جادو کرنے کے وجہ سے بہت سالوں پہلے بادشاہ ایڈون نے، جو کہ رپنزل کا باپ تھا، اسے اس سلطنت سے نکال دیا تھا۔ جس ذلت کا بدلہ لینے کا موقع اسے آج ملا تھا، سو اس نے موقع پاتے ہی اپنا وار کر ڈالا اور ان کی اکلوتی بیٹی اٹھا کر کے بھاگ گئی۔ اب رپنزل گاجا کے قبضے میں تھی۔ جب رپنزل بہت چھوٹی سی ننھی سی تھی تب سے ہی اس کے بال بہت لمبے تھے، سنہرے، بہت خوبصورت، بہت لمبے، دل کو لبھانے والے۔ رپنزل بہت معصوم سی تھی،
वो गाजा को ही अपनी माँ समझने लगी। वो उसी मीनार में अपने लिए खुशियां तलाश करने लगी, उसी में रहती। और देखते ही देखते वक्त गुजरता चला गया और रपंजल बड़ी हो गई। मगर एक ख्वाहिश जो कि रपंजल के दिल में शुरू से थी, वे अड़ते हुए कंदीलों की खूबसूरत रोशनी को और बाहर की दुनिया को देखने की ख्वाहिश करती थी। मगर गाजा हमेशा उससे एक ही बात कहती कि बाहर की दुनिया बहुत खौफनाक है और वहाँ के लोग बहुत जालिम। सो तुम ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो और दोबारा कभी बाहर जाने की बात मत करना। वो ये सब कुछ सिर्फ बादशाह और मलका को तकलीफ देने के लिए करना चाहती थी, और साथ ही साथ अपनी ताकत के खोने के डर से वो रपंजल को किसी की नज़रों के सामने नहीं लाना चाहती थी। इस जादुई मीनार को रपंजल ने अपनी मोहब्बत और मेहनत से खूबसूरत बनाया था। मीनार अंदर से बहुत खूबसूरत था। रंगीन आग की अंगीठी जलती हुई, खूबसूरत किताबें शेल्फों पे पड़ी हुई। रपंजल दिन भर घर में अकेली रहती और इस चार दीवारी में दीवारों पर पेंटिंग करती रहती, किताबें पढ़ती रहती। अपनी माँ के उन्हें से पहले अच्छे अच्छे खाने बनाती, चाय बनाती, खाने की मेज सजाती। अभी भी जो वक्त न कटता तो अपने बाल संवारती, उनके साथ खेलती, उनमें झूमती, नाचती। उसके पास गाजा के सिवा सिर्फ एक ही दोस्त था, जिसका नाम था पास के एक छोटी सी गरगट थी जो शुरू से रपंजल के साथ रहती थी, क्योंकि एक दफा वो चढ़ती हुई मीनार में आ गई और पंजल ने उसे अपने पास रखा। तब से ये मंजिल के साथ रहने लगी और उसको समझने भी लगी। रपंजल खाना बनाती है, मीनार को खूब साफ सुथरा रखती, सजाती और यूं अपना दिन का गुजारा करती। मगर वो रोजाना खिड़की के बाहर आकर जरूर देखा करती। जब वो देखती खूबसूरत घने जंगल को, आबशार को, चहकते परंतों को, महकते फूलों को, तो हसरत करती कि एक दिन बाहर जाकर देख ले कि उड़ते कंदील और चमकती दुनिया कैसी लगती है। मगर माँ ने बहुत डरा रखा था, जिस डर से वो कभी भी खुद से हिम्मत न कर सकी कि वो बाहर जाकर देखने। इस छिपे हुए गहरे राजदार मीनार तक वो रपंजल के बालों पर चढ़कर जाया करती थी और उसी के जरिए उतरती थी। गाजा ने रपंजल को कभी बाहर नहीं जाने दिया, लेकिन शायद किस्मत का कुछ और ही मंजूर था। यूं कि एक दिन जैमन नामी एक लड़का अपनी जान बचाता हुआ कुछ गुंडों से उस गहरी खाई और पहाड़ी के पास वो निकला। जैसे ही जंगल के बीचों बीच वो उस चोटी तक पहुंचा जहां ये मीनार वाक़या था, तो उसे अपनी जान बचाने के लिए कोई रास्ता दिखाई न दिया और उसने मीनार पर चढ़ना शुरू कर दिया। वो मीनार पर चढ़ा और अंदर दाखिल हो गया। अंदर जाते ही जैसे ही रपंजल ने उसे देखा तो वो घबरा गई। डर के मारे रपंजल ने उस पर हमला कर दिया, मगर उसके बावजूद ज़ैवन उसे कुछ न कह सका, क्योंकि वो उसकी खूबसूरती को देखकर हका बका रह गया। उसकी खूबसूरत बाल, हरी आंखें और मासूम चेहरा ज़ैवन के दिल में उतर चुका था। जब ज़ैवन ने जवाब में कुछ न कहा, तब रपंजल हैरान हो गई और उसने कहा कि वो माफ़ी चाहती है। ज़ैवन ने कहा, तुम यहाँ रहती हो क्यों? रपंजल ने उससे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि वो जिंदगी में एक बार बाहर निकलकर इस दुनिया को और उड़ते कंदीलों को देखना चाहती। ज़ैवन उसे मना ना कर सका और यूं दोनों में एक दोस्ती का रिश्ता सा बन गया। मगर गाजा को इस बात की खबर नहीं थी, क्योंकि वो उस वक्त घर पर न थी। ज़ैवन और रपंजल मीनार से बाहर आते हैं। जैसे ही रपंजल मीनार से बाहर जमीन पर उतरती है, खूबसूरत
हरी घास को देखकर खुशी से पागल होने लगते हैं। वो खुश होती है, घूमती है, गाती है, खाती पीती है, शहर सफर करती है। रोपंजल और ज़ैवन दोनों नदी किनारे बैठकर खूब बातें करते हैं, साथ चलते फिरते हैं और एक हल्की सी मोहब्बत का रिश्ता सा कायम होने लगता है। अब शाम का वो वक्त था जब कंदील उड़ने थे। ज़ैवन उसे खूबसूरत और ख्वाबों की सी नदी के पास ले गया। हजारों की तादाद में खूबसूरत कंदील बहुत जोश के साथ रोशन थे, जिनकी रोशनी से काला आसमान सुनहरी हो चुका था और पानी में उस सुनहरी अक्स को देखा जा सकता था। उड़ते हुए वो रोशन खूबसूरत जगमगाते ख्वाबों के से कंदील देखकर रोपंजल की खुशी की अंतहा न रही। कश्ती में खड़ी होकर वो जीवन के साथ ये सारा मंजर देख रही थी। फिर कश्ती में बैठकर इस दरिया में उसने भी जीवन के साथ अपना कंदी उड़ाने की तैयारी की। कश्ती में सवार रपंजल और जीवन भी अपना कंदील उड़ाते हैं। इस वक्त ज़ैमन अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है और रोपंजल और ज़ैवन एक दूसरे के गले लग जाते हैं और असली मोहब्बत का आगाज होता है। मगर अब ज़ैवन को रोपंजल को वापस छोड़ने जाना था। वो रोपंजल को वापस छोड़ता है और रोपंजल वापस अपने घर चली जाती है। ज़ैवन उसके बारे में बहुत सोचता है। उधर रोपंजल भी बाहर की दुनिया से बहुत मुतासिर होती है और वो इससे ऐसा नहीं पाती जैसा कि गाजा ने बताया था, बल्कि वो तो बहुत खूबसूरत, खुश और रंगीन पाती है बाहर की दुनिया को। एक दिन रोपंजल गाजा को बता देती है कि उसके जाने के बाद एक लड़का आया था जिसके साथ वो बाहर की दुनिया को देख आई है। ये सुनते गाजा अपना आपा खो देती है और पंजल को कैद कर देती है कि तुम मेरी इजाज़त के बगैर बाहर नहीं जा सकती और मैंने तुमसे कहा था कि मुझे धोखा मत देना। इस बात से रोपंजल को अंदाज़ा हो जाता है कि ये उसकी असली माँ नहीं है, बल्कि सिर्फ जादुई बालों की रोशनी को हासिल करने के लिए उसे कैद किए हुए है। जीवन रपंजल से मिलने आता है तो बालों को लटकता पाता है। जैसे ही वो अंदर आता है तो गाजा ज़ैवन पर हमला बोल देती है। वो समझती है कि इसने ज़ैवन को मार है डाला। वक्ती तौर पर ज़ैवन ज़मीन पर ढेर हो जाता है। रपंजल बहुत रोती है, चल मिलाती है, भीख मांगती है गाजा से कि हूँ उसे ज़ैवन को बचाने का मौका दें, उसके बदले में वो हमेशा के लिए उसकी कैदी बन के रहेगी। अब मीनार के अंदर का मंजर कुछ और ही कह रहा था। ज़ैवन ज़मीन पर बेसद गिरा था, जंजीरों में कैद की हुई लपटी हुई रपंजल बेचैन थी और खूब रो रही थी। उसे लग रहा था शायद उसने ज़ैवन को खो दिया है, वो भी हमेशा के लिए। गाजा ये सब देखकर बहुत खुश थी, क्योंकि वो ज़ैवन को मारकर हमेशा के लिए रोपंजल को अपने अकीदी बना लेना चाहती थी। जैसे ही रोपंजल ने यह पेशकश की कि ज़ैवन को उसे बचाने दिया जाए और उसके बदले में वो हमेशा के कैदी बन जाएगी, तो गाजा ने खुशी के मारे बगैर कुछ सोचे समझे और मंजिल को इजाज़त दे दी। रोपंजल जैसे ही ज़ैवन के पास पहुंची तो बहुत रोई। उसे बाहों में भरने के बाद वो बहुत अफसरदा थी, मगर ज़ैवन अभी मुरा नहीं था, वो सिर्फ बेहोश हुआ था। उसने मौका पाते ही रपंजल के बाल काट दिए, एक शीशे के टुकड़े के साथ जो कि खिंचा तानूनी के दौरान वहां पर गिरा हुआ था। जैसे ही उसने रोपंजल के बाल काटे तो तमाम सुनहरी बाल मध्यम पड़ने लगे और उनका रंग बदलने लगा। बहुत तेजी के साथ ये सब देखकर गाजा की जान निकल गई। उसका हलिया बदलने लगा। वो जवान और खूबसूरत जो नजर रही थी, एक बदसूरत बढ़िया
की सूरत में नजर आने लगी। वो बहुत ही चलाई रोई और इसी सदमे में अपने जादू के जरिए खत्म हो गई। जीवन को जिंदा देखकर रपंजल की खुशी की अंतहा नहीं रही। वो रोती हुई उसके गले से जा लपटी और वो दोनों बहुत खुशी खुशी खड़े हुए। रपंजल को गाजा तो मरने का दुख था, मगर कैद से रहाई की खुशी भी थी। इस तमाम तर खौफनाक वाक़ये के बाद रपंजल और ज़ैवन इस मीनार से वापस उतरकर आम दुनिया में वापस होते हैं। ज़ैवन रपंजल को इसके माँ बाप इसकी सल्तनत और बादशाहत में लेकर जाता है। रपंजल के होने से पहले जब उसकी माँ और बाप को उसके होने की और मिल जाने की खबर मिलती है तो वो उस कदर जज्बाती होते हैं कि बस खूब रोना शुरू करते हैं। वो अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश होते हैं। रपंजल भी जब अपने घर के दरवाजे से दाखिल होती है तो खुशी के मारे सप्ते में हो जाती है। अब शहर में जश्न का समा था। लोग खूब जश्न मना रहे थे, नाच गा रहे थे। पूरा शहर सजा हुआ था। शाही घोड़ा और गार्ड्स रपंजल की आमद की तैयारी कर रहे थे। अब रपंजल और दीवन की शादी हो जाती है और सारा शहर उन्हें बहुत मुबारकबाद देता है। खूबसूरत कपड़ों में मलबूस रपंजल और जीवन खूबसूरत सजी हुई बगी के पास खड़े होकर सबको हाथ हिलाकर मोहब्बत का पैगाम देते हैं और फिर रपंजल अपने माँ बाप और जीवन के साथ खुशी खुशी अपने शहर पर अपनी सल्तनत पर हुकूमत करती है। उधर गाजा जो बादशाह और मलका के जज्बात से खीलती है और थोड़ी सी ज़लत का बदला लेने के लिए उन्हें उम्र भर की तकलीफ देती है, वो हमेशा के लिए नाकाम हो चुकी है और मुर्दा भी हसद और लालच इंसान को तबाही की जानिब ले जाती है और वो अपना मकाम व मर्तबा और सुकून सब कुछ खो देता है। अपने मतलब और वक्ती सुकून के लिए दूसरों का बुरा करने वाले कभी भी खुश नहीं रहते और न ही कामयाबियों ने नसीब होती है, बल्कि वो बर्बाद हो जाते हैं गाजा की तरह।